Good morning everyone. I welcome you back again in the e-learning program organized by Sri Vidyadhish Vidya Sankul, inspired by Dr. G.M. Sutaria sir. Today we are going to start with CC and SP subject, that is commercial correspondence and secretarial practice. Okay, in the last session, that was our first session, we have learnt what SPCC is, right? What CCSP is. Okay, the word meaning we have understood, right? The introduction part you have now clear that what each and every part is important and how it is going to be useful to you in your exam also. All right, so based on that we have started with chapter number 1 of part 2. ओके, पार्ट 2 इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो कभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है. ऑल द वे in your day-to-day life you have used these words, but we don't know the exact meaning of those words. Okay, so basically this chapter is meaning and types of secretary. Okay, we all have heard the word secretary, right? But previously we were not knowing exactly what it is. In the previous sessions we have discussed about the proprietorship, when a person is doing the business all alone. Okay, अकेले ही कर रहे हैं, तो that is called proprietor, where the proprietor is the only owner. वही खुद ही invest करता है, वही manage करता है. Each and every task is being performed by that one particular person. Whenever there is problem arises, then the next level arises. ठीक है, जब problem आएगी तभी हम लोग को एक दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ता है. So पहले जब when commerce started, when the business started, it has started from the proprietorship. एक ही इंसान होता था, वो खुद इन्वेस्ट करे, वही मैनेज करे. तो इन्वेस्ट जो कर रहा था और जो मैनेज कर रहा था बिजनेस को, दोनों एक ही पर्सन हुआ करते थे. आफ्टरवर्ड के ऐसा लगा कि there is a problem. Then they have found another solution, so they have went to partnership firms. In that more than 2 or more than 2% together, they have formed one firm that is called the partnership firm. Okay, and then they both were investing in their own proportion. जैसे proportion वो लोग का decide हुआ होगा, accordingly they were investing and they were managing the work. ओके, आफ्टरवर्ड्स दे फाउंड कि नहीं, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो लायबिलिटीज़ होती है जो पार्टनर्स की, दैट इज़ अनलिमिटेड. ठीक है, कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ, ओके, तो सपोज़ कि उनका रेशियो है 50-50%. ठीक है, 1:1, 50% का रेशियो है, दोनों एक जितना ही प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो केस में जितना लॉस हुआ, सपोज उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 50,000 करके, 1 लाख का इन्वेस्ट करके उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप किया. अभी वो बिज़नेस इतना बुरे तरीके से पिट गया कि इतना लॉस होने लगा, तो अभी उन्होंने 2 लाख का तो लॉस इनकर कर दिया, तो फिर वो उनका 2 लाख इक्वली उनको पे करने पड़ेंगे. सो द लायबिलिटीज़ वर अनलिमिटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे वर द ऑनर्स एंड दे वर द मैनेजर्स. ठीक है, वही ऑनर थे फॉर्म के और वही उसको मैनेज कर रहे थे. ठीक है, अभी उसमें भी प्रॉब्लम्स आई. सो देन दे हैव स्टार्टेड कि यार चलो अभी एक और कुछ बिजनेस फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंपनी. एंड दैट कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर कंपनीज एक्ट 2013. पहले 1956 आया, फिर उसके काफ़ी अमेंडमेंट्स आके 2013 में एक अलग से एक्ट, फिर से उसी एक्ट को अमेंड करके किया गया, दैट इज़ 2013 एक्ट. ओके, सो ऑल द वे इन कंपनीज व्हाट हैपन, shareholders are the ultimate owner of the companies, but they are not the manager of the companies. shareholders owner है कंपनी के, पर वो कंपनी को मैनेज करने नहीं बैठते. उसके डे टू डे वर्क में क्या हो रहा है वो शेयर होल्डर्स देखने ही नहीं जाते. ठीक है, तुम्हारे पास भी कहीं शेयर होंगे, पर तुमको डे टू डे कंपनी में क्या हो रहा है वो तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज इट इज़ द कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय द ऑनर्स, बट इट इज़ मैनेज्ड बाय देयर डायरेक्टर्स. ओके, अभी डायरेक्टर्स भी क्या होते हैं, वो विजन एक सेटअप करते हैं, कंपनी का मिशन सेटअप करते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करते हैं. ओके, एंड दे ऑल्सो नाउ नीड समबडी
who should be trustworthy to take care of all the affairs of the companies, okay, whether it's a legal affair, whether it is other administrative affairs, whether it is any kind of work, it is all to be taken care by one person, that is called the secretary of that company. Okay, so let's we have understood the introduction part of this chapter. Now we'll start with the main portion, that is the meaning of the secretary, right? First we will read that paragraph and each and every line we will discuss it. Okay, so what does they say? Meaning, in Gujarati language the word secretary has been derived from English. गुजराती वर्ड, इट इज़ नॉट अ गुजराती वर्ड सेक्रेटरी, राइट, वो इंग्लिश में से ही आया. इंग्लिश सेक्रेटरी इज़ द इंग्लिश वर्ड, ओके, विच इज़ जनरली वी यूज़ इन गुजराती एज अ मंत्री. द वर्ड मंत्री इन गुजराती विच मीन्स पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी. ओके, गुजराती में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं. ओके, तू आनो मंत्री नहीं था, ओके, उसका असिस्टेंट मत बन, ये तू उसके बिहाफ पे मत बोल, ठीक है. सो ऐसे वर्ड्स जनरली कोर्ट्स ऐसे गुजरातीज यूज, आई नो. ओके, सो इन गुजराती लैंग्वेज द वर्ड सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश. Generally we use mantri word in Gujarati which means personal assistant, PA we call it now, and secretary. In olden days kings and royal families used to keep secretary. Not just these are like ये कंसेप्ट जो आया है सेक्रेटरी का, वो अभी का कंसेप्ट है ही नहीं. पहली बार हम लोग अभी इसको ना मॉडर्न वर्ड बोल देते हैं, सेक्रेटरी है ये, ठीक है, बट एक्चुअली ये वर्ड बहुत पुराना है. इवन इन द हिस्टोरिकल टाइम से ये वर्ड्स यूज होते आ रहे हैं. इन दैट दे यूज टू अपॉइंट मंत्रीज. जैसे अगर तुम लोगों ने अकबर की बातें सुनी हो तो उसका बीरबल कैसे उसका मेन वो होता था कि ये उसका स्पेशल मंत्री है, कि वो उसका स्पेशल असिस्टेंट है. मतलब दैट पर्सन, ओके, वेन एवर आई टॉक अबाउट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी और मंत्री, these are the people we can trust the most in the company. okay, जो किंग होता है, ओके, जैसे कंपनीज में किंग नहीं होता है, वो आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल थिंग. तो जैसे किंग होता है जो पूरा मैनेज कर रहा है कंट्री को या उसके स्टेट को, तो दे नीड सर्टन पीपल टू हुम दे कैन ट्रस्ट, एंड द सेक्रेटरीज आर द पीपल on which they have the trust. okay, they keep their secrets, they are the well wishers of the company, I would say. okay, so these royal families also they use this word which is mantri, that is the personal assistant or their secretary. Shri Sumant was secretary of King Dashrath. okay, then Shri Vidur was secretary of Dhritarashtra. oh my god, we have went to Mahabharata and all, okay, in the Ramayana. जैसे इन लोगों के भी they also used to have their special मंत्री कि जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे कि जैसे कोई भी कोई भी कुछ इलीगल सा हो रहा है या कोई भी लीगल मैटर है, तो वो रूल्स बताएगा कि नो, दिस इज़ द रूल, दिस इज़ टू बी फॉलोड. ठीक है, इवन दैट टाइम किंग दशरथ का सेक्रेटरी वॉज श्री सुमंत एंड श्री विदुर वॉज assistant, or we can say secretary of Dhritarashtra. okay, these are the characters of Ramayana and Mahabharata. In that also they used to have their assistants, they used to have their mantris. और ये मंत्रीज ऐसे थे कि जो भी कोई लीगली कुछ बात चलती है, जैसे कोई भी कोई प्रॉब्लम्स आते थे पहले उनके टाइम पे, कैसे होता था कि उनके टाइम पे अभी कोई लॉ, कोई कोर्ट या ऐसे कुछ तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं थे. तो उनके जो एरिया में कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उनके प्रजा दे कॉल इट, राइट, तो उनमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो दे वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द किंग. ओके, अभी किंग इज़ द बिजी मैन, उसके पास बहुत सारे काम है, ठीक है, तो उसको भी इतना लीगली इतनी याद नहीं लगेगा. सो ही हैज़ अपॉइंटेड अ पर्सन कॉल्ड सेक्रेटरी. उस टाइम पे उसको मंत्री बोलते थे. ठीक है, अभी तो जो भी वो अभी प्रॉब्लम अपनी रखेगा कि हाँ, दो जने जैसे आए लड़ाई करते हुए कि ये इसने ऐसा बोला, तो दोनों के वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा. एंड द मंत्री वुड बी द वन, किंग विल बी आस्किंग टू द मंत्री दैट
what is to be done in this matter, because legal जो भी चीज़ें हैं, जो rules and regulations है, that lies with this secretary. Okay, in Mughal Empire they were called वज़ीर. Okay, अभी जैसे हम लोग मंत्री बोल रहे हैं, अभी वैसे ही उसको क्या बोल रहे हैं, उस मुग़ल के एम्पायर में दे यूज्ड टू कॉल इट वज़ीर. बीरबल, अबू फजल वर वेल नोन. ओके, बीरबल एंड अबू फजल. बीरबल के बारे में तो आई थिंक सबको पता है. अकबर बीरबल की कहानी तो सबने बचपन से सुनते आए हैं. ठीक है, सो बीरबल वॉज समवन के हु यूज्ड टू बी कॉल्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट वन. सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था उस टाइम पे अकबर के एम्पायर में. एंड वॉट एवर प्रॉब्लम अराइजेस इन द किंगडम ऑफ अकबर, ही यूज्ड टू आस्क टू Birbal, because he was someone which is very much reliable and very much trustworthy and intelligent too. Abu Fazl was a statistician of that time. उस टाइम पे अबू फजल was someone who has written the book of how this empire is working. Okay, और उसमें जो पूरा डेटा होता था, ठीक है, पहले के टाइम में there was no such word called data and statistics, ऐसा कुछ वर्ड नहीं हुआ करता था. बट he was the one who has recorded all the things, right? कि कितना हम लोग किंगडम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, कितना हम लोग सेव कर रहे हैं, कितना हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने प्रपोर्शन में कर रहे हैं, कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं एम्पायर के. तो एवरीथिंग ही यूज्ड टू मेक द रिकॉर्ड्स, ही यूज्ड टू डू द कंपैरिजन. सो जो स्टेटिस्टिशियन हम लोग अभी स्टेटिस्टिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं, एट दैट टाइम ओके ही हैज़ डन ऑल दीज थिंग्स. Okay, and yes, N.A. Akbari is the name of his book which he has written. Okay, N.A. Akbari, if you'll search it out, you'll get the names on the Google also, that N.A. Akbari was the book which he has written, Abu Fazl, from the kingdom of Akbar. Okay, so he was also one of the trustworthy secretary of Akbar king. Okay, and he used to be called as Wazir. Okay, now next is what else they are saying, that Birbal and Abu Fazl were well known in among all of them. In the ancient Roman Empire, those who performed the work of correspondence on behalf of king were called scriba. Okay, in the ancient Roman times में भी जो king के behalf में correspondence करेगा, that is called the scriba. It is another name for Mantri, another name of secretary, another name of Wazir. Okay, so these are the words which they used, okay, in the place of secretary. So ancient Roman Empire, they used to have the word scriba. अभी ये word इसलिए यूज़ होता था कि किसके लिए ये word यूज़ हो रहा था? For the person who is doing the correspondence on behalf of the king. King के बदले जो बंदा जो लेटर्स या जो भी उसको उस टाइम पे उनके पास कॉल वॉल नहीं थे, राइट? तो एंशियंट बातें चल रही है, रोमन एम्पायर की बहुत पहले की बात चल रही है. सो जो भी कम्युनिकेशन दे यूज टू डू, तो वो कम्युनिकेशन इस स्क्रिबा के थ्रू हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ दैट एम्पायर. ओके, तो उसका मेनली काम क्या होता था कि जो भी किंग के जो लेटर्स है, किंग का जो भी करस्पॉन्डेंस होगा, दैट विल बी डन बाय दैट पर्सन. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड द स्क्रिबा, और जिसको हम लोग सेक्रेटरी भी बोलते हैं. ठीक है, देन द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. अभी इंग्लिश वर्ड भी है, प्योर तो नहीं है, वो भी लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है. ओके, दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरियस, which means one who keeps secret details and observe correspondence. पूरा चैप्टर सीखोगे, पूरा बुक पढ़ लोगे. जो दो चीज़ें जो मेन है सेक्रेटरी की, इज दैट द सीक्रेट कीपर, आई वुड से, and the one who will do the correspondence of those correspondence for those kings or those master or the one who is the owner of that company or owner of that particular organization. So
दो चीज़ें जो सेक्रेटरी का रोल निभाती है, दैट इज़ ही शुड बी अ सीक्रेट कीपर। हमारे कैसे फ्रेंड्स होते हैं ना कि ही इज़ माई सीक्रेट कीपर, शी इज़ माई सीक्रेट कीपर, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। सो सेम वे दिस सेक्रेटरी इज समबडी हु कैन होल्ड योर सीक्रेट्स। अभी तुम लोग अपनी सीक्रेट किसको बताओगे? इन सबको तो नहीं बताते हम किसको बताते हैं? द वन टू whom वी आर रिलाइंग, ओके, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ओके, एंड क्वालिफाइड भी होता है। ऐसे नहीं हम लोग किसी भी, चलो हाँ इसके ऊपर भरोसा है, मुझे किसी को बोलेगा नहीं, पर इसको खुद के पास ही दिमाग नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ी ना बोलेंगे। हम लोग किसको बोलेंगे? जिसके पास हम फील करें नो ही इज़ ट्रस्टवर्दी एंड ही इज़ क्वालिफाइड ऑल्सो। ऐसे नहीं अनक्वालिफाइड कुछ भी होगा नहीं उसके पास, तो हम लोग को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना। तो वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए, उसकी समझ भी होनी चाहिए। कोई पागल से भी इसी को नहीं दे सकते कि हाँ चलो जा सीक्रेट ले लिया हमारा। ऐसे करते हैं क्या? कभी नहीं करते ना। सो सेम वे हियर द क्वालिफाइड पर्सन who should be a secret keeper of yours. So it is written, the Latin word secretarius means the one who keeps the secret details. जो details है organization की, जो secret details है वो उसको save करके रखें and observe the correspondence. जो भी correspondence का meaning मैंने पहले ही बताया था, communication we do it through the letters. तो जो भी उसका communication होगा that should be done by that secretary. Now secretary works as a personal assistant. He does the correspondence on behalf of his master and keeps personal secret. He is not supposed to reveal his master's secrets to others. तो उसके पास क्या होता है, जैसे बोला कि ये दो चीज़ें तो आएंगी ही। फर्स्ट ही इज़ द वन हु कीप्स द सीक्रेट ऑफ इट्स मास्टर। मास्टर मतलब उसका बॉस भी हो सकता है, उसका जो अथॉरिटी वी कैन सी, कि उसकी अथॉरिटी ने जो उसको सीक्रेट दिए हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी चीज़ के, तो ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु शुड keep it as a secret. He is not, he or she is not supposed to reveal it to anyone else. किसी और के सामने उसको रिवील करना नहीं है, ठीक है। एंड ही और द शी आर द वन हु आर सपोज टू डू द करस्पॉन्डेंस विद अदर पार्टीज ऑफ दैट मास्टर्स, ओके। तो उसका जो बॉस होगा वो जिसके साथ डील कर रहा है, तो वो जो ऑनर होगा उसके पास बहुत काम है, ठीक है। तो वो ऐसे उसकी मेन काम क्या होता है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, तो उसका वर्क यही होगा कि मैं अपने बिजनेस को कहाँ एक्सपांड करूँ, ठीक है। तो जनरली अगर देखा होगा ना, तो बिजनेसमैन बहुत सारे वो दे आर नॉट द वन हु विल बी मच एजुकेटेड वन, उनको बहुत लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होता है, right? To be honest, mostly, right, I'm not asking about all of them are not much educated, but mostly they are not educated. They are more focused on making profit. They are most focused on, how would they expand the business. So they need the secretary who can guide them that how they would expand their business इन द लीगल फॉर्म। लीगली वो कैसे उसको एक्सपांड कर सकते हैं, लीगली वो उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ सेक्रेटरी, ओके। क्योंकि सेक्रेटरी इज़ द वन हु इज़ क्वालिफाइड, ओके, हु इज़ एजुकेटेड, हु नोज द रूल्स, हु नोज द लॉज which they are going to implement, तो वो उसको सब पता है, right? So that's why that person is someone who will assist his master, ओके, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल असिस्टेंट। सो जो भी उसके जो मास्टर का पर्सनल कम्युनिकेशन रहता है रिलेटेड टू देयर बिजनेस, दैट इज़ बीइंग डन बाय दिस सेक्रेटरी, ओके। सो कंक्लूजन तो यही पहुँचते हैं हम लोग कि पहला कि वो उसका सीक्रेट कीपर रहेगा, secondly they are not supposed to reveal those secrets to anybody else, and they are the one who will be doing the correspondence on behalf of their master, on behalf of their boss, on behalf of their king, whatsoever role they are playing. Okay, so now let's move ahead to definition. Okay, meaning and definition of something. Meaning उसका normal words में हम लोग meaning बताते हैं. Definition is something which is being used in a perfect words. अगर suppose question में तुमको ऐसा बोला है write the meaning of secretary, you can use your own words and describe it. But if you are being asked to write the definition of secretary, then you have to write the particular words which are being used in that डेफिनेशन. तो जो डेफिनेशन में वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वही आपको उसमें डिस्क्राइब करने हैं. उसमें आप वो मीनिंग वाले करोगे तो चांसेस ऑफ डिडक्टिंग ऑफ योर मार्क्स में अराइजेस. ओके,
So definition is something you have to write the particular words which are being used in the textbook. Okay, let's read. Secretary can be defined as follows. In general sense, secretary means a person who performs the activities of maintaining secrecy, observes the correspondence, documentation, keeps the records of agreements, undertakes other activity as directed on behalf of another person, association, corporation or public institution. Let's read each and every word and let's interpret them. Alright, so what they said that in general sense, ये सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, अभी डीप पे तो अभी बाद में बताएंगे. Secretary means a person who performs the activities of maintaining secrecy. पहले तो वो क्या कर रहा है, secrecy बना रहा है, ठीक है. It is maintaining the secrecy. Then it observes the correspondence. ओके उसका करस्पॉन्डेंस मतलब जो कम्युनिकेशन थ्रू लेटर हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है. सो ये दो चीज़ें तो हम लोग कब से बोल रहे हैं कि सीक्रेट रखता है, करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखता है, विच मीन्स वेर एवर देर इज़ नीड टू कम्युनिकेट, वेर एवर देर इज़ कि कोई भी ऑर्डर देना है या फिर कहीं पे भी कोई लीगली अगर कोई कंपनीज को बार बार नोटिस आते रहते हैं राइट कि ये टर्म्स आपकी नहीं हुई है तो आप ये टर्म्स फुल करो, या फिर देर आर थाउजेंड्स ऑफ लीगल मैटर दैट गोज़ ऑन राइट, तो उसका करस्पॉन्डेंस किसको करना है, सेक्रेटरी को करना है. देन इट इज़ डॉक्यूमेंटेशंस. जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशंस. ओके तो पूरा उसका रिकॉर्ड, कहीं पे भी जाओगे ना, कोई भी ऑफिस में जाओगे, कोई भी बैंक में जाओगे, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स यू विल सी, हज़ारों थप्पे बड़े होते हैं इतने सारे. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉट जस्ट दिस फिजिकल फॉर्म्स बट देर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ लीगल मैटर्स दैट अ पर्सन दैट अ सेक्रेटरी नीड्स टू डील विद. सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो बिजनेसमैन होगा तो उसका काम क्या है, उसका अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा, उसके पास ये सारी चीज़ें देखने का टाइम नहीं है. फॉर दैट ही नीड्स टू अपॉइंट द पर्सन सेक्रेटरी, जिसके बिना भी एक्चुअली वो वर्क नहीं कर सकता है. बट दैट सेक्रेटरी इज द वन who will be taking care of all the documentation of that business. ठीक है, उसको एक्सपांड करना है तो ऐसे ही एक्सपांड नहीं हो जाता है. इवन कंपनी रजिस्टर करने के लिए भी कितनी प्रोसीजर होती है, दैट इज ऑल to be done by this secretary. Okay, that is the role of its secretary, right? Then documentation then keeps the records of agreement and undertakes other activity. ठीक है, records of agreements. ठीक है, कोई भी डील वो करते हैं जब, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर किसी और कंपनी के साथ या किसी और के साथ कोई भी डील कर रहे हैं तो दे साइन एन एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन होता है. पहले प्रपोजल्स जाते हैं कि चलो कि हमको आपके साथ ये डील करनी है, दीज आर माई कंडीशंस, इफ़ यू एक्सेप्ट इट देन वी कैन गो फॉर द फर्दर बिजनेस रिलेशनशिप्स. ठीक है, दैट इज़ द प्रपोजल. वो भी सेक्रेटरी बनाता है उसके साथ मास्टर्स के साथ उनके या बॉस के साथ उनके डिस्कस करके दे गिव द प्रपोजल. ओके, उसके बाद वो अप्रूव देते हैं कि हाँ चलो ये कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही है, तो अगर आप इसमें कुछ ठीक करके अगर प्रपोजल हमको बाकी मंजूर है. सो इस वे में उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके अग्रीमेंट्स होते हैं. सो दैट इज़ टू बी टेकन केयर बाय द सेक्रेटरी. ओके, एंड अदर एक्टिविटीज़ बहुत सारे डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशंस होते हैं. देन देर आर मैनी लीगल थिंग्स गोइंग ऑन इन द company, so these all things are to be taken care by the secretary, right? Now as per the Oxford dictionary, अभी Oxford dictionary ने भी इसने अपना व्यू दिया है कि secretary होता क्या है, right? So let's read what Oxford University said. Oxford dictionary says, I would say, university नहीं बोल रही है, dictionary बोल रही है. A person who conducts correspondence on behalf of a person, society, corporation, on behalf of any person,
society, corporation or any public institution keeps records and maintain any carry out different business transaction is appointed. तो जो बंदा अपॉइंट हो रहा है टू डू द करस्पॉन्डेंस, ठीक है, कि उसका कोई भी पर्सन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, राइट, कि दे आर द वन हु वर्क्स फॉर नो प्रॉफिट, ओके, तो कोई भी एनजीओ है या कुछ भी, कोई भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जिसको अपॉइंट कर रहा है सेक्रेटरी के लिए, तो दैट पर्सन, द सेक्रेटरी वुड बी द वन हु विल बी टेकिंग इन चार्ज ऑफ द करस्पॉन्डेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर इंस्टीट्यूट, ठीक है. सो अल्टीमेटली जो करस्पॉन्डेंस, जो लेटर्स एक्सचेंज का, इसमें जस्ट नॉट जस्ट अ लेटर, ओके, कि ये सिर्फ लेटर नहीं होते, दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स वी कैन कॉल, कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें एग्रीमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं. तो खाली ऐसा नहीं कि चलो लेटर राइटिंग कर दिया ख़त्म हो गया, नो, there are certain contracts, there are certain very much thousands of rules. सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉरपोरेशन, कुछ भी है तो वो abide, they are abide by the law, and to follow the law it is not that easy work. So that's why only the reason arises ke we need to appoint a secretary who knows the rules and regulation, who knows the laws of the particular organization. So it's not about the person alone can, only companies appoint the secretary, even there are thousands of organizations they appoint, even the person himself alone also can appoint a secretary to take care the correspondence on behalf of them. All right, so this is the meaning. Now according to Companies Act, अभी कंपनीज एक्ट ने भी अपना व्यू प्रेजेंट किया कि सेक्रेटरी किसको बोलते हैं. सो कंपनीज एक्ट की तो एक अलग ही बात हो रही है. लेट्स रीड अबाउट दैट. सेक्रेटरी मीन्स the constitutionally qualified person appointed to observe the responsibilities of the duties as assigned to secretary according to the status and performance of other administrative and ministerial work. Now what they are trying to say that this secretary, according to the Company Secretaries Act, okay, there is one whole organization, ICSI, okay, Indian Institute of Company Secretaries of India, okay. अभी ICSI ने ऐसा बोला कि the secretary is the one who is constitutionally qualified, which means कि उसने CS का कोर्स करा हुआ होना चाहिए, राइट. ही शुड बी, द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके वो क्वालिफाइड होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है, मतलब उससे उसकी एग्जाम्स क्लियर करी हुई होनी चाहिए, ओके. टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ड्यूटीज एज असाइन टू द सेक्रेटरी, ओके. तो उसको जो ड्यूटीज़ और उसको जो उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कंपनी ने डाली है वो कंपनी के ऊपर, ठीक है. कंपनीज एक्ट ने जो ड्यूटीज़ डाली है कंपनीज़ के ऊपर, वो सारी ड्यूटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्सन, ओके. एंड दे हैव गिवन सर्टेन ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए, ओके, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन, ओके, एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी. तो ये जो तीनों अलग अलग डेफिनेशंस उन्होंने दी, एंड जो तीनों अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूट की, जो कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन है, दैट इज़ समथिंग कि वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मेन कंडीशन यही होती है कि वो क्वालिफाइड बाय इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास पूरी डिग्री होनी चाहिए. ऐसे ही किसी को भी हम लोग नहीं उठा सकते, क्योंकि it deals with the legal matters, as we have seen that वो documentation करता है, वो agreement sign करवाता है, so obviously they must be qualified one. ऐसे ही कोई भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है. Then there are certain characteristics of this secretary, okay, जो तीन हमने definition and meaning देखा, उसके बेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम लोग ला सकते हैं कि वी कैन से कि these are the characteristics if I want to appoint a secretary, कि इसमें ये characteristics तो होने चाहिए. Okay, so let's read about the characteristics.
Okay, so these are the characteristics of secretary. Okay, first of all, it is a secretary must be properly qualified. So पहला क्या हुआ, he or she should be qualified. So जो पहली ही condition है, that says the person should be qualified one. ऐसे ही हम लोग किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, स्पेशली अगर कंपनीज होगी तो दे विल बी अपॉइंटिंग द पर्सन हु शुड बी यू नो क्वालिफाइड वन. जो रोल उसको अपॉइंट असाइन करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर दैट. ओके, कि उसको लीगल टर्म्स जो हो उसको पता होनी चाहिए तो ही वो डील कर पाएगा, वरना वो कैसे डील कर पाएगा. ठीक है, बिकॉज करस्पॉन्डेंस करना है तो कोई भी लेमैन को अगर हम लोग ले लेंगे, लेमैन कैन नॉट करस्पॉन्ड, एक्सेप्शनली दे कैन करस्पॉन्ड ऑब्वियसली, बट इन जनरल टर्म वी डोंट रिलाई ऑन देम. ओके, सो अ पर्सन शुड बी प्रॉपरली क्वालिफाइड वन. देन नंबर 2 is the secretary knows personal matters and secrets of his master and keep it confidential. Okay, keeps the secrets confidential. Okay, तो जो हम लोग बंदा अपॉइंट करते हैं, okay, that should be okay, so the person which we are appointing, okay, they is the secret, they know our secret. Okay, पर्सनल मैटर्स उसके मास्टर के, पर्सनल मैटर जो भी कंपनी में है तो वो कंपनी के, या कोई इंस्टीट्यूट में है तो वो इंस्टीट्यूट के पर्सनल मैटर्स को जानता है. अगर इवन पर्सनल अपॉइंट करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं तो उसको भी वो जिसकी सेक्रेटरी, जिसके आप सेक्रेटरी हो तो उसको आपके मास्टर के आपको सारे यू नो वी कैन सी द सीक्रेट्स, वो सब आपको पता है. ओके, एंड what else is said, the secret of his masters and he is supposed to keep it confidential. Okay, कि अगर ऐसा नहीं, चलो सीक्रेट तो मैंने बता दिया, फिर वो ये सीक्रेट तो अभी पूरे गांव को पता चल गया है ना, सबको पता है अभी वो, तो दैट इज़ नॉट द पर्सन हु आर कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल. वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहा है, सो दैट इज़ नॉट द क्वालिफाइड पर्सन. सो वी नीड टू चेक if the person can keep the secret, if the person can keep the secrets confidential. ओके, सो दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट कि इसका कोई डिग्री नहीं होती है, दैट इज़ समथिंग अ पर्सनल कैरेक्टर. ओके, ऑफ द पर्सन. कि कई लोग होते हैं जो सीक्रेट्स कीप कर सकते, कई लोगों के ऐसे होते हैं कि बोले बिना रह ही नहीं सकते, तो बोल देंगे किसी ना किसी को. सो वी नीड टू चेक एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज़, आई वुड से कि तब एट दैट टाइम दिस इज़ द मेन थिंग दैट दे चेक इफ़ यू आर द सीक्रेट कीपर और नॉट. ओके, तो ऐसे ना इसमें तो कैसे भी ट्रिकी करके भी पूछते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं ना, दे विल आस्क यू कि वाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब. ओके, तो अगर वो उससे सामने वाले के वो अच्छा बनने के लिए कहीं बार क्या करते हैं कि वो बोल देगा कि वो कंपनी में तो ऐसा चल रहा है, वो कंपनी में तो ऐसे चल रहा है, तुरंत वो यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको डर रह जाएगा एम्प्लॉयज़ को, बॉस को, कि अगर कहीं फ्यूचर में मैं इसको निकाल देता हूँ या ये मेरी जॉब छोड़ देता है तो ये तो मेरे सीक्रेट्स भी सारे पूरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बता देगा अच्छा बनने के लिए. ओके, सो एट दैट टाइम, वेरी दैट मोमेंट, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड वन, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट द सीक्रेट कीपर. वो सीक्रेट्स नहीं रख पा रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ द क्वालिटीज़. देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स एक्चुअली, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक, आई हैव गिवन द आइडिया. Next is he performs whatever duty is assigned to him. Okay, so he performs the duty. Okay, अभी पर्सन को बोलते हैं कि चलो आपको ये मेरा काम करना रहेगा, कि ये सपोज मैंने किसी को अपॉइंट किया सेक्रेटरी को, एंड आई एम सेइंग कि ओके जस्ट give the proposal to this party on my behalf and keep these terms. ठीक है, ये terms लिख देना और ये उनके साथ डील कर लेना. ठीक है, उनको अग्रीमेंट भेज देना, प्रपोजल मेरा भेज देना. Now that person is saying no, I'm busy today.
ठीक है, मुझे आज काम नहीं करना, सो यू नो ही इज़ नॉट डूइंग द वर्क विच इज़ असाइंड टू हिम, सो द पर्सन शुड बी परफॉर्मिंग द ड्यूटी विच इज़ असाइंड टू देम। तो अगर वो काम ही नहीं करेगा तो हम उसको क्यों अपॉइंट करेंगे, है ना। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि वट एवर वर्क वी आर गिविंग दे शुड बी परफॉर्मिंग द ड्यूटी, ऑलराइट। सो he doesn't have any of his own authority. Authority is assigned to him. Authority is assigned to him. उसके पास कोई authority नहीं है, you know, to work, but द अथॉरिटी इज़ असाइंड टू हिम। अगर मैं उसको नहीं बोल रही हूँ कि उसको प्रपोजल देना है और वो खुद से प्रपोजल दे रहा है, नो बॉस, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, ओके। ऑल द वे दे हैव ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, ठीक है, वो दैट इज समथिंग दैट डेवलप्स आफ्टर फ्यू ईयर्स और आफ्टर सम टाइम, ओके। बट देन ऑल्सो द पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट क्वालिफाइड टू टेक एनी चार्ज, ओके। ही इज गेटिंग द ड्यूटी, ही इज गेटिंग द अथॉरिटी विच इज असाइंड टू हिम। उसको बोला नहीं है तो ही कैन नॉट डू इट, ऑब्वियसली, राइट। देन नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी इज हेल्पफुल टू कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स and contracts. He does the correspondence on behalf of the master. He preserves documents, contracts properly, okay. He is the one who preserves documents and contracts, okay. सो जो सेक्रेटरी होगा दैट पर्सन विल बी द वन हु प्रिजर्व्स द डॉक्यूमेंट। वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके होंगे वो उसको प्रिजर्व करेगा, मतलब उसको सेव करेगा, राइट। देन ही विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू कंस्टिट्यूट दीज डॉक्यूमेंट्स, ओके, क्योंकि वही उसका मेन रोल है, टू डील विद द डॉक्यूमेंट्स, टू डील विद द लीगल मैटर्स। बिकॉज जो बॉस होगा उसका, he is not into the, you know, he is not into to look after all these legal things, okay. इसीलिए तो आपको अपॉइंट कर रहे हैं कि you have to see all these legal matters, all these document related matters, all these contract related matter। किसी को अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो बॉस होगा तुम्हारा वो तुमको क्या बोल देगा कि ये प्रपोजल है, ये उसको दे दो कि चलो इतना प्रॉफिट मैं उसको दूंगा। अगर सपोज फ्रेंचाइजी का है या कुछ भी है तो उसकी कंडीशन कि हाँ ये इतनी तुम्हारे जो भी शोरूम खोल रहे हो इतना ये कंडीशन है कि इतना एरिया होना चाहिए, ऐसे रोड्स पे होना चाहिए, इतना प्रॉफिट दूंगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग द पर्सन गिव्स द कंडीशन। पर अभी जो लीगल उसमें जो मैटर्स होती है कि ठीक है इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन से कोर्ट में तुम डील करोगे, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या लीगल एक्शंस ली जाएगी, ओके। फिर ये इतने टाइम में आपको ये पीरियड में इतना क्लियर करना रहेगा। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैटर्स, ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसके कितने सारे पेजेस वो बनते हैं, ठीक है, कि ये कंडीशंस है, छोटी से छोटी बात को उसमें ध्यान में रखा जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी लुक्ड आफ्टर, ओके। सो दैट वर्क इज टू बी डन बाय द सेक्रेटरी, ओके। So he or she is the one who should be helpful, to deal with all these legal and legal matters of documents or in the contracts. Okay, last one is only a living person can be appointed as a secretary. Okay, so the person should be living person. Okay, I cannot appoint a non-living person, obviously. ठीक है, this person should be a living person all the way. There are certain forms of company secretary, especially if I talk about. तो उन firm में से भी they can select, but that person वो specially उसके लिए बोल रही हैं कि ये CS है, ये आपके लिए है, ठीक है। सो देयर शुड बी अ पर्सन हु शुड बी अ लिविंग पर्सन। कोई आर्टिफिशियल पर्सन हम इसमें एज अ सेक्रेटरी को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मशीनरीज होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, दे कैन नॉट वर्क ट्रस्ट, मतलब दे कैन बी ट्रस्टेड बट they cannot work actively obviously the way human beings work. So definitely we need a person, okay, because हम लोग बोलते हैं उसको personal secretary बोलते हैं, तो that should be a person, okay, the living one,
Alright, so all the way the person should be the living person as a secretary. Okay, so all the way today we saw the meaning and definitions and the characteristics. Let's have a recall of all these characteristics. First of all, the secretary should be the qualified one. Okay, the person, we are not supposed to take the layman. Okay, we will take the person who is qualified, who knows the documents, who knows how to do the paperwork, who knows how to correspond accurately, right? He keeps the secret confidential. He should be the one to whom we can trust. Okay, the trustworthy person को ही appoint करना है जो हमारे secrets को रख पाए. Performs the duty, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं काम करना. Okay, he should perform the duties whatever is assigned to him. Okay, then authority is assigned to him. He don't have his own authority. He has to work whatever is being assigned to them. Okay, he's not supposed to work whatever he wished to work, but there's something which is assigned to him. Preserves the documents and contracts. जो भी documents या legal चीज़ें कोई भी चल रही है, that is to be taken care by this secretary. Lastly, the person should be a living person. Artificial person are not supposed to be selected as a secretary. Alright, so these are the meaning, and now I hope that you all are clear with the subject, what we are going to learn. Alright, in the next session we will discuss about the types of secretary. What are the types of secretary, what each and every secretary plays their roles. Okay, so just read a little. If you feel that now you are understanding, then you read before the next lecture is delivered to you. Alright, so thank you so much everyone for watching. I hope you all are understanding now. Keep revising. After the next session I'll start giving you homework, so please prepare for that also. Okay, thank you so much for watching. Have a nice day ahead.